Hello friends, this is Rajiv and welcome to Zero to Infinity. डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस किए थे, इन विच वी हैव डिस्कस वेरियस मेथड टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. And as I still remember that we have discussed near about 3 methods in order to solve the linear equation, and I hope you understood everything clearly. As I think that we have discussed much question on the basis of multiplication of algebraic expression, and I hope you got the idea to solve any type of multiplication of the algebraic expression. So, in this video, we shall discuss about the division of algebraic expression. The division of algebraic expression is also takes place in two methods. The first method is known as actual division method, and the second method is used when the divisor is monomial. When the divisor is monomial, then we can use fraction method as well as actual division method. But when the divisor becomes binomial or more than binomial, like trinomial or polynomial, then the fraction method cannot be applied in order to find out the quotient and remainder in the divisor. So students, let's start our today's video, and here we start from a question. The question is, as I know, before starting the question, first of all let me introduce about the term that is used in order to find out the division. So as we know that in the division there are various terms, like the first is known as dividend. The first term is called dividend. The second term is known as division, and the third is called quotient. The third is known as quotient, and the last is called remainder. These are four terms which usually we have to know in order to do the division. As I know that you all are familiar about this term in your previous classes, but let's see what is the dividend. Dividend is a quantity which is to be divided. Dividend वो क्वांटिटी होता है जिसे डिवाइड करना रहता है, मतलब जिसको हमें बांटना होता है. Divisor is the quantity through which we divide the dividend. Divisor वो क्वांटिटी होता है जिससे हम डिवीजर को डिवाइड करते हैं, मतलब डिविडेंड को इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, बांटते हैं. तो डिविडेंड को इक्वल पार्ट में बांटने के लिए हमें जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजर कहते हैं. नेक्स्ट इज कॉल्ड कोसेंट. कोसेंट एक ऐसा टूल्स होता है जो हमें इस बात के लिए हेल्प करता है कि डिवीजर को हम कितने टाइम उसका मल्टीपल कंसीडर करें कि वो डिविडेंड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 1000 मैंगोज को, 1000 आमों को 1000 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर डिवाइड किसको कर रहे हैं, मतलब कि हम बांट किसको रहे हैं, मैंगोज को बांटने जा रहे हैं. ठीक है, हम किसको डिवाइड करने जा रहे हैं, मैंगोज को डिवाइड करने जा रहे हैं. किसमें, पर्सन में. ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डिवीजर है. ये क्या है, डिवीजर, और ये क्या है, डिविडेंड.
मतलब कि जिसको बांटना होता है उसको डिविडेंड, जिससे बांटना होता है, जिससे बांटना होता है उसको डिवीजन कहते हैं। 1000 मैंगोज को 1000 लोगों में हम कैसे बांटें कि हर व्यक्ति को बराबर बराबर आम मिल सके। तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए हम जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वही क्या कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है। यानी कि डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। तो 1000 का कौन सा मल्टीपल होगा जो इस डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो हम कहेंगे कि 1। यानी कि अगर 1000 मैंगोज को 1000 लोगों के बीच में अगर डिवाइड करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1000 का फर्स्ट मल्टीपल। यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो 1 आ रहा है, दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग दैट हियर वी हैव टेकन द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ द डिवीजन। तो क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट इज द टूल व्हिच डिसाइड दैट which multiple we have to take in order to divide the dividend in equal part. And the last one is called remainder. remainder का मतलब बचा हुआ। डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। आई होप दीज आर क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। We shall start our today's topic from the question, and the question is and the question is divide 4x to the power 4 plus 3x cube plus 7x square plus 8x plus 4 by 2x। दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बनता है, इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को 2x से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट मेथड हम क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको हम एक्चुअल डिवीजन मेथड से करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुअल डिवीजन मेथड का यूज हम तभी करेंगे जब हमको डिवीजन मोनोमियल ना होकर या तो बाइनोमियल मिल जाए या फिर ट्राइनोमियल मिल जाए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक्चुअल डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। यस, I will use here also actual division method. So let's see the first method. So here we write 4x to the power 4, the first term, and it is divided by 2x. ऐसे कर फिर यहाँ पर प्लस है, लिख देंगे प्लस 3x क्यूब अपॉन डिवीजन क्या है 2x। क्लियर है बात। अगला क्या लिखेंगे 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, फिर प्लस 8x डिवाइडेड बाई 2x और प्लस 4 अपॉन 2x। मतलब कि ईच टर्म, प्रत्येक टर्म को 2x से आप डिवाइड कर दो। देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मिला क्या, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म में क्या मिला 2x टू द पावर 4 से एक x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या x क्यूब, तो हम लिखेंगे 2x क्यूब। नेक्स्ट x से एक x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, 2 से 3 डिविजिबल नहीं होता है, हम ऐसे ही रहने देते हैं 3/2। और देखिए x क्यूब को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो वहां पर x स्क्वायर बचेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे नहीं, हम ऐसे लिखेंगे 7/2 x और प्लस यहाँ x से x डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ 4। क्लियर है बात। नेक्स्ट में आप
2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, बट इसके न्यूमरेटर में x मौजूद नहीं है, तो x एज इट इज रहेगा और यहाँ पर मिलेगा 2/x। दिस इज द रिजल्ट। 2x cube plus 3/2x square plus 7/2x plus 4 plus 2/x is the right answer। तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। एक तो सॉल्यूशन निकालने का ये मेथड है, एक अल्टरनेट मेथड भी यूज करते हैं। उस अल्टरनेट मेथड का यूज हम करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में उसका यूज करने का बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। whenever you get the question in this form then you can use this method in order to solve the question। अगर एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखते हैं तो आप इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें कि आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ये क्वेश्चन है, डिवाइड x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बाई x प्लस 6। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है। अगर मैं यहाँ पर डिवीजन की बात करता हूँ, इस डिवीजन की कैटेगरी क्या है? पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। और जब बाइनोमियल होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम कहीं भी फ्रैक्शन मेथड का यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ भी हम फ्रैक्शन मेथड का यूज नहीं करेंगे और इसको हम क्या करेंगे? एक्चुअल डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 और यहाँ पर डिवीजन को लिखते हैं x प्लस 6। क्लियर? अब इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, डिवीजन के पहले टर्म को और डिविडेंड के पहले टर्म को आप साइड में लिखिए। तो डिवीजन का पहला टर्म क्या है? x और डिविडेंड का पहला टर्म क्या है? x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं? डिविडेंड के पहले टर्म को डिवीजन के पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमको कोसेंट मिल जाए। ये प्रोसेस हमको क्या दिलाता है? इस प्रोसेस से हमको कोसेंट की प्राप्ति होती है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x क्या है? x जो है हमारा कोसेंट होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपने कोसेंट को। ठीक है, ये हमारा कोसेंट मिल गया। अब यही प्रोसेस हम सारे टर्म के लिए, फॉर ईच टर्म वी रिपीट द सेम प्रोसेस। वी टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइड इट बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन। अब इस x का मल्टीप्लाई आप इस पूरे डिवीजन में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई x by x as we have discussed the multiplication of the algebraic expression. So we multiply x into x, we get x square. Clear? X into 6, we get 6x. यूजुअल डिवीजन में हम करते क्या थे? इतना लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ भी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है उस क्वांटिटी के हर टर्म के साइन क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? जो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है उस क्वांटिटी के सारे टर्म को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अगर क्वांटिटी के टर्म प्लस में है तो वो माइनस हो जाएंगे, अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वांटिटी प्लस में है, ये माइनस हो जाएगी। ये क्वांटिटी प्लस में है, माइनस हो जाएगा। और ये वाला टर्म क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन जब भी करते हैं तो जीरो हम नहीं लिखते हैं। जीरो लिखने से क्या होता है? कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। जीरो लिखने से इसकी शोभा थोड़ी बिगड़ती है, तो हम नहीं लिखते। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 minus 6। Whenever we change the sign in the division, then we consider the final sign that we have put. We don't consider the old sign. So 6x is become negative and 12x is remain positive. So when 12x and minus 6x, we get 6x.
and we write here the next term, that is the 36. Now our dividend is 6x plus 36. This is our new dividend. We don't consider this. Now let take the first term of the dividend, and the first term of the dividend is 6x. So we write 6x, and this first term of dividend is divisible by the first term of the divisor. So we write here x. Now when we divide, we get the quotient as 6. Since the first term of the divisor has the sign of plus, therefore we put the sign of plus also in the quotient. Now we write here 6. Now multiply this 6 to the each term of the divisor. So when we multiply 6 into x, we get 6x, and 6 multiplied by 6, we get 36. And when we subtract, each term becomes 0, and now the remainder is become 0. So in this way we can solve the division of the algebraic expression, and these are the two methods through which we can solve the division of algebraic expression. So I hope that each and every step of the question is clear. Now let's see the next question. The next question is divide 4x cube y square plus 8x square y cube plus 4x y by 3x x plus y. This is the given question. So let's see its solution. We write here 4x cube y square 8x square y cube plus 4x y, and it is divisible by x plus y. Now in the first step we take the first term of the dividend. So we write here 4x cube y, and this first term will be divisible by first term of divisor, and the first term of divisor is x only. So we write upon x. So when we solve, we get x cancelled out, x cube, and we get here 4x square y as the quotient of this divisor. So we write here 4x square y. Now multiply by this quotient to each term of the divisor. So when we multiply this by first term of the divisor, we get 4x cube y square, and plus when it multiplied by this, we get 4x square y cube. Now divide it, we get, when we subtract, this part becomes 0, and we get here 8 minus 4, 4, and here we get x square y cube, and we write here 4x y as the quotient. Sorry, the next term. Now we write here the first term of the dividend, and the first term of the dividend is this 4x square y cube,
and it is divisible by the first term of the divisor. So when we divide, we get 4xy cube. So we write here plus 4xy cube as the quotient. Now we multiply this by each term of the divisor. When it multiplied by x, we get 4x square y cube, and plus when it multiplied by this, we get 4x y to the power 4. And when we solve, this becomes cancelled out and we get 4x minus 4x y to the power 4 and plus 4x y. Since the division is not completed here, but when we continue this process, this division will be going on to some more steps. So we can also get such type of question in which the remainder will not be zero in the examination. So you need to do practice on such type of question. So I hope the solution of such type of question is clear to everyone. So the assessment for you is to solve question from your book. So first of all, you have to watch the complete video. After that, you need to open your book and solve more and more questions for the better practice. Your examination is about to come, so you must do the revision in a perfect way. So we shall meet in the next question in the next video with new question. Till then, goodbye.